नमस्कार, सोशल माइक ऑफ इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ, एक गुड न्यूज के साथ। स्कूल ठीक कार्यक्रम के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। 15 अगस्त 2026 की शुरुआत की गई थी अभिजीत दीप के द्वारा। उसके बाद जिस तरह से पूरे देश ने स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति देखा, अब सरकारों की आंखें खुल गई हैं। पहले सरकारों ने स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए, वीडियोग्राफी करने के लिए बैन लगा दिया। अब इसी सरकारों ने, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इन राज्यों ने अपने यहाँ के सरकारी स्कूलों के कायापलट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। ये जीत हुई है कॉकरोच जनता पार्टी की, ये जीत हुई है भारत के सभी अल्फा और जेनजी युवाओं की, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और अपने अधिकारों की मांग करी। कहावत है ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक बार फिर से भारत के सभी युवाओं की एक बहुत बड़ी जीत। इसके चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका ने कहा कि इसरो भविष्य में किसी प्रकार के ना तो कोई सैटेलाइट बनाएगा और ना ही अपना खुद का कोई रॉकेट लॉन्च करेगा, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी अब सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। यानी इसरो को अब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचा जा रहा है। यानी सरकार अब हर चीज का जो है प्राइवेटाइजेशन करिए। सोचो, इसरो जिसने भारत को इतनी उपलब्धियां दी, आज इसरो पूरी दुनिया में सबसे सस्ते दामों पर स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। सबसे सस्ते दामों पर अपना स्पेस कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। सरकार अब इसे पूरी तरीके से निजी कंपनियों को बेच रही है। आरएसएस को अमेरिका में बैन करने की मांग लगातार उठ रही है और 29। Good morning. My name is Sarita Pandey and I speak on behalf of Save America from Hindutva. The RSS is not a cultural organization. It is a Hindu supremacist paramilitary movement whose ideology and networks have been associated with horrific violence against Muslims, Christians and other minorities in India. Killings, attacks on homes and businesses, and the destruction and desecration of places of worship. This movement is not confined to India. For decades, the RSS has built an infrastructure in the United States through deep ideological, historical, and organizational connections with US-based Hindu supremacist groups. Its ecosystem operates through shakhas, student organizations, charities, cultural programs, lobbying campaigns, and political advocacy, seeking influence in our universities, libraries, school systems, legislatures, and interfaith spaces. Now, its supreme leader Mohan Bhagwat is coming to Madison Square Garden. There is nothing inherently wrong with seeking legitimacy in America, but the question is, legitimacy for what? Bhagwat is seeking American respectability for a movement and an ideology fundamentally at odds with American values of religious equality, pluralism, and equal citizenship. If this event proceeds, its most valuable output will be the photographs and the images. The supreme leader of the RSS beneath the Madison Square Garden name, addressing thousands from a celebrated American stage. Those images will circulate worldwide as evidence that Bhagwat was welcome and honored in New York. This is reputation laundering for an extremist organization. It's equivalent to giving a stage to the leaders of ISIS and Al-Qaeda. The U.S. Commission on International Religious Freedom has recommended targeted sanctions against the RSS for responsibility or tolerance of severe violations of religious freedom. American institutions should not help sanitize its record. Madison Square Garden should not lend its name, prestige, and credibility to this project. Mohan Bhagwat and RSS deserve scrutiny and sanctions, not legitimacy, spotlights, and applause. We call on Madison Square Garden to cancel this event. Thank you. अगस्त 2026 को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में एक कार्यक्रम में भाग लेना है और उस कार्यक्रम को उद्देश्य है वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन वहां पर न्यूयॉर्क में इस ऑर्गेनाइजेशन का लगातार कड़ा विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि वहां पर अनेक जो संगठन है, उनका कहना है कि ये एक ऐसा संगठन है जो कमजोरों के खिलाफ अत्याचार करता है, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार करता है और ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल है जिससे देश का बंटवारा भी हो सकता है। और इसलिए न्यूयॉर्क के सैकड़ों जो संगठन है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, तमाम संगठनों ने
आरएसएस को बैन करने की मांग उठाई है। और अब इस मांग में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी भी आ चुके हैं और तमाम ऑर्गेनाइजेशन का, तमाम ग्रुप्स का वो सपोर्ट कर रहे हैं और आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कोकरोच जनता पार्टी ने फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ, उनके वादा खिलाफी के खिलाफ एक मार्च आयोजन करने का आह्वान किया है, जो 5 सितंबर को दिल्ली के इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर तक होगा। उनका कहना है कि 25 जुलाई को सरकार के साथ जो मीटिंग हुई थी और सरकार के साथ जो बात हुई, जो सहमति बनी थी, सरकार अभी उस वादों को पूरा नहीं करी। यानी सरकार ने अभी तक किसी बच्चे को कंपनसेशन नहीं दिया है, उन्होंने पैसे नहीं दिए जिसका वादा किया गया था। जिन छात्रों ने नीट एग्जाम लीक की वजह से अपनी जान गंवा दी, उनके अभी तक पैसे नहीं दिए उनके परिवारों को, और ना ही सरकार ने 25 जुलाई के जो वादा किया गया अभी तक उसको पूरा किया गया। इसलिए सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, 5 सितंबर को दिल्ली के इंडिया गेट से शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया जाएगा, जो अंत होगा जिसका दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर तक।